Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for MTCAT, and today I am going to discuss joint and its types and arthritis and its types. So let's move to the classboard. Dear students, now the joints and its types. So very interesting topic today we are going to discuss. So first of all, we're going to discuss under which branch or which category the study of joint comes. So it is arthrology. So arth means joint, like you have studied. आपने पढ़ा हुआ है like arthropods, phylum Arthropoda, ठीक है, arthropods, jointed, appendaged or jointed fitted organisms, या फिर arthrophytes पढ़ा आपने, ठीक है, जिसमें horse tails में, ठीक, plants having joints, that is the subdivision Sphenopsida. इसी तरह से arth का मतलब है joint और ology का मतलब the study of. So it is the scientific study of structure and function of joints is called as the arthrology. Or scientific study of structure and function of joints. The word is joint. So what is joint? The location or the place in the body where two or more than two bones and a cartilage come together or meet or face each other is called as a joint. So that very location is called joint. That very articulation or that very position in the body where two or more than two bones meet is called as a joint. इसका फंक्शन डियर स्टूडेंट्स, जॉइंट्स का मकसद क्या है? अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में जॉइंट्स क्यों रखे? जिनको उर्दू में हम जोड़ कहते हैं. इसका मकसद है, एक तो ये हमारा जो स्केलेटल फ्रेमवर्क है, हमारा जो स्केलेटन है, इसको होल्ड करके रखे. नंबर 2 कि इट अलाउस अस मूवमेंट, ये हमें हरकत मूव करने में मदद देता है. लाइक आई एम मूविंग माई फिंगर्स और आई एम मूविंग माई आर्म, आई एम मूविंग माई जॉज to speak, etc. So it allows movement, and these movements could be used for various purposes. So dear students, in today's topic we are going to discuss the most importantly the classification of the joints. तो दो तरह से हम क्लासीफाई करने जा रहे हैं जॉइंट्स को. एक तो उनकी मोबिलिटी यानी फंक्शन के एतबार से, और दूसरा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर. सो पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलिटी और function or movement. Clear? Or movement. All these terms are related to each other. So on the basis of mobility or movement or function, so the joints are classified into three main categories. Number 1, immovable joint. Number 2, slightly movable joint. And number 3, the freely movable joint. So immovable, so it tells us there is no movement possible at all. यहाँ पर किसी किस्म की कोई मूवमेंट नहीं होने वाली है इस तरह के जॉइंट्स पे. और आम तौर पर ये जॉइंट्स होते हैं, ये हमें मिलते हैं हमारे स्कल में, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इन द स्कल जॉइंट्स. डियर स्टूडेंट्स, एक और चीज़ याद रखनी, इमूवेबल जॉइंट्स का एक और साइंटिफिक नेम है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सिनआर्थ्रोसिस. दे आर कॉल्ड एज सिनआर्थ्रोसिस. सिन मीन्स फ्यूजन. जहाँ पर ये फ्यूज्ड होते हैं वहाँ पर कोई कैविटी नहीं होती है और वहाँ पर इसी वजह से कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं है. नंबर 2 आर द स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स. स्लाइट मतलब थोड़ी सी या फिर ना हो. So slightly movable joints, they allow a little or no movement at the joint, at the place where the two or more than two different bones meet. So little or no movement, and they are also called amphiarthrosis. They are also called as amphiarthrosis. और इसकी examples, for example, intervertebral joints, intervertebral joint. Clear? So they are the example of slightly movable joint. अब हम बात करेंगे तीसरी किस्म के जॉइंट्स की.
द फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स. सो फ्रीली मतलब आज़ादी के साथ. सो दे अलाउ मूवमेंट इन मल्टीपल प्लेन्स. मुख्तलिफ प्लेन्स के ऊपर ये मुख्तलिफ डायरेक्शंस में ये मूवमेंट को अलाउ करते हैं. एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड diarthrosis. They are also called as diarthrosis. And for example, elbow joint and the knee joint and the shoulder joint, etc. And so, and before moving further to the major classification of the joints, so here is some terminology which is related to the movement at the joints. कि joints के ऊपर जो मुख्तलिफ तरह की movements होती हैं कि उनकी ये थोड़ी सी just I am going to give you an overview regarding these movements कि ये movement किस तरह से होगी. तो first of all there is flexion. Flexion ये ऐसी movement होती है joint पे जहाँ पर there is decrease, it causes the decrease in angle between two bones. दो बोन्स के दरमियान जो एंगल है वो कम होता है. ये देखें, ये जॉइंट है एल्बो जॉइंट. ये दो बोन्स जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं तो इनके दरमियान एंगल कम हो रहा है. सो दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एज फ्लेक्शन. और द मूवमेंट इन विच द बोन इज बेंडेड एट जॉइंट. ठीक है, जहाँ पर बोन को बेंड किया जा रहा हो, बेंडिंग मूवमेंट जो होती है, और बेंडिंग मूवमेंट दैट इज कॉल्ड एज फ्लेक्शन. इसी तरह से हमारे लेग्स को हम जैसे बेंड करते हैं, सो दैट इज द फ्लेक्शन. नाउ एक्सटेंशन में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? देयर इज इंक्रीज इन एंगल बिटवीन बोन्स. हड्डियों के दरमियान जहाँ पर जोड़ बन रहा हो, जहाँ पर जॉइंट बन रहा हो, वहाँ पर एंगल इंक्रीज करे तो उसे हम कहते हैं एक्सटेंशन. लाइक दिस. तो ये हमारे बोन्स जहाँ पर ये एल्बो जॉइंट और मैं ये इनके दरमियान देखिए एंगल इंक्रीज कर रहा है लाइक दिस. सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सटेंशन. और स्ट्रेटनिंग ऑफ बोन्स at joint is called as extension. Now another term is abduction and adduction. So abduction in this movement, it is the movement of parts away from center. बॉडी का जो सेंटर है, दिस इज आवर सेंटर, यहाँ से जब किसी हिस्से को दूर ले जाया जाए तो वो कहलाता है एबडक्शन. लाइक दिस. देखिए ये मेरी आर्म है, आई एम मूविंग इट आउट, आई एम स्ट्रेचिंग इट आउट, इस तरह से. सो दिस इज कॉल्ड एज एबडक्शन. एंड एडक्शन, इट इज डेफिनेटली द ऑपोजिट ऑफ एबडक्शन. इट इज द मूवमेंट ऑफ पार्ट्स टूवर्ड्स center of the body. Like I am moving it down now towards the, so ये मैं center की तरफ move कर रहा हूँ बाजू को. So this is my adduction, abduction, adduction, and flexion and extension. So these are the movements which are being performed at the joints. And circumduction. So circumduction, it is the combo. It is a combo of 1 plus 2 plus 3 plus 4. इसे कहते हैं कॉम्बो. ये चारों मूवमेंट्स एक सिंक्रोनाइज्ड वे में जब मूव होती हैं तो उससे जो मूवमेंट रिजल्ट होती है दैट इज कॉल्ड एज सर्कमडक्शन. लाइक दिस. सो दिस इज सर्कुलर मोशन. या जो बॉलिंग एक्शन होता है, ठीक है, दैट इज ड्यू टू दिस एट द सम ऑफ दीज actions or these movements. So this is called as circumduction. Now another term is there, supination. So supination में, in which the palm
or forearm faces up and the palm or forearm faces down. This kind of movement is called as pronation. तो ये देखें, ये मेरी दिस इज माई पाम और ये मेरी फोर आर्म. अगर मैं इसको ऐसे सीधा करूं, ये ऊपर की तरफ इनकी डायरेक्शन हो, दिस मोमेंट, सो दिस इज कॉल्ड एज सुपिनेशन. और अगर इसको मैं रिवर्स करूं इस तरह से, सो दिस इज कॉल्ड एज प्रोनेशन. मतलब पाम को और फोर आर्म को जब नीचे की तरफ देखेंगे, ये फेस करेंगे, डाउनवर्ड फेस करेंगे, सो दिस इज सुपिनेशन, प्रोनेशन. और अगर ये अपवर्ड फेस करेंगे तो दिस इज सुपिनेशन. क्लियर? यानी कि इसे कहेंगे सीधा, सुपिनेशन सीधा याद रखें, हाथ सीधा करना, और प्रोनेशन पुट्ठे से ऐसे ही, लाइक दिस. ये देसी तरीका याद रखने का. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द मेजर क्लासिफिकेशन रिलेटेड टू आवर टुडेज लेक्चर, that is classification on the basis of the structure. Now, dear students, the major topic which today we are going to cover regarding the types of joints is the classification based on the structure of joints. पहले इसके मीनिंग समझ लीजिए कि यह स्ट्रक्चरल बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन किस तरह से की जाती है. पहले हमने की मूवमेंट की बेस के ऊपर कि जो जॉइंट जिस तरह से मूवमेंट अलाउ कर रहा है उसके अतबार से, यानी अगर कोई मूवमेंट अलाउ नहीं कर रहा तो वो इमूवेबल है, कोई थोड़ी सी मूवमेंट अलाउ कर रहा है तो वो स्लाइटली मूवेबल है, और अगर कोई मल्टीपल फ्री मूवमेंट अलाउ कर रहा है तो वो फ्रीली मूवेबल है. लेकिन अब हम बात करेंगे कि जब कोई जॉइंट बनता है, दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ आपस में जुड़ती हैं जहाँ पर, तो उनको जोड़ने के लिए जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है उसकी बेस के ऊपर हमने अब ये क्लासिफिकेशन करनी है. यानी हड्डियों को जोड़ने के लिए जो स्ट्रक्चर चाहिए, क्या वो फाइबरस टिश्यू चाहिए या वो कार्टिलेज चाहिए या उनके दरमियान में कोई और कैप्सूल चाहिए या कोई कैविटी चाहिए. सो दैट इज़ हाउ वी आर गोइंग टू क्लासीफाई. क्लियर? तो स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर देखें तो तीन टाइप्स हैं. मूवमेंट की बेस के ऊपर भी तीन टाइप्स थी, स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर भी तीन टाइप्स हैं जॉइंट्स की. द फाइबरस जॉइंट्स, द कार्टिलेजिनस जॉइंट्स एंड द सिनोवियल जॉइंट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फाइबरस जॉइंट्स. तो फाइबरस, सो बहुत लॉजिकल बात, बहुत आसान बात कि जहाँ पर भी दो हड्डियाँ मिलेंगी वहाँ पर उन दो हड्डियों के दरमियान फाइबरस टिश्यू आएगा. क्लियर? फाइबरस टिश्यू, शॉर्ट फाइबर्स आएंगे जो इनको आपस में जोड़ करके रखेंगे और एक जॉइंट बन जाएगा. क्लियर? सो the adjacent bones are directly connected to each other by short fibers. By short fibers embedded in connective tissue, which are embedded in connective tissue. Connective tissue means the bone. तो उनके दरमियान में short fibers होंगे जो उसमें से फंसे हुए होंगे. Let's suppose कि हमारे पास एक bone है और ये दूसरी बोन है जो आमने सामने है, एडजेसेंट है, तो इनके दरम्यान में शॉर्ट फाइबर्स, और ये उसकी मदद से ये आपस में जुड़ गई. सो दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज द फाइबरस टिश्यू. दिस आर द शॉर्ट फाइबर्स विच आर एम्बेडेड बिटवीन द टू एडजेसेंट बोन्स. इनमें कोई जॉइंट कैविटी नहीं होती, नो जॉइंट कैविटी. एज यू कैन सी देयर इज नो जॉइंट कैविटी, कोई स्पेस नहीं है इनके दरमियान. जहाँ तक बात करें मूवमेंट की, सो नो मूवमेंट एट ऑल. ये किसी भी तरह की कोई मूवमेंट अलाउ नहीं करते. सो दे आर इमूवेबल जॉइंट्स. द फाइबरस जॉइंट्स, दे आर इमूवेबल जॉइंट्स. Here are a few examples which have been discussed as per our syllabus. So पहली बात तो ये मैंने आपको दिखाया टॉप व्यू ऑफ स्कल. ये स्कल है, स्कल का ऊपर से यहाँ से टॉप व्यू दिखाया गया है. तो टॉप व्यू में ये आपको कुछ इस तरह से लाइनें दिखेंगी. जो क्रेनियल बोन्स होती हैं, यानी कि ये सामने फ्रंटल है, ये पैराइटल बोन्स, फिर ये टेम्पोरल बोन और पीछे ऑक्सीपिटल बोन, इनके दरमियान जो जॉइंट्स बनते हैं क्रेनियल बोन्स के दरमियान, उन्हें कहा जाता है सुचर्स. जो क्रेनियल बोन के दरमियान जॉइंट्स बनते हैं उनको क्या कहा जाता है? सुचर्स. और वो सुचर्स जो होते हैं वो तीन चार मेजर टाइप्स हैं उनकी. ठीक है? मियोटॉपिक, एंड दिस इज
sagittal suture, this is the coronal suture, and this is the lambdoid suture. तो ये उनकी टाइप्स है फर्दर आगे sutures की. लेकिन but in general you have to remember is the joints of the joints between the bones of the skulls, they are called as sutures. अब ये एक suture है, इसको हमने खोल के देखा तो ये देखें ये दो हड्डियां और उनके दरम्यान में शॉर्ट फाइबर्स. इसी तरह से ये शॉर्ट फाइबर्स हैं बिटवीन एम्बेडेड बिटवीन देम. ये इस तरह से बोन के दरम्यान यहाँ पर ये देखिए पैरेटल बोन्स इनके दरम्यान देयर इज द शॉर्ट फाइबर्स. सो नंबर वन दे आर प्रेजेंट बिटवीन द बोन्स ऑफ द स्कल और उन जो जॉइंट वहाँ पर बनता है उनको सुचर्स कहते हैं. दूसरा यहाँ पर देखें दिस इज अल्ना एंड दिस इज रेडियस द बोन्स ऑफ आवर फोर आर्म. ये हमारे फोर आर्म की बोन्स हैं. तो इनके दरमियान स्पेस है. स्पेस को कवर किया हुआ है शॉर्ट फाइबर्स ने. इनको बिल्कुल आपस में से जोड़ करके रखा हुआ. ये देख सकते हैं यहाँ पर जो आपको ये ग्रीन कलर में दिख रहा है. दिस वन दिस इज अल्ना, दिस इज रेडियस, द टू बोन्स ऑफ आवर फोर आर्म. सो इनके दरमियान जो स्पेस है दैट इज कवर्ड विद द शॉर्ट फाइबर्स. सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द फाइबरस जॉइंट. इन दोनों के दरमियान ये दो हड्डियां आमने सामने और उनके दरमियान शॉर्ट फाइबर्स, दिस इज कॉल्ड एज द फाइबरस जॉइंट. और डियर स्टूडेंट्स इनके दरमियान जो फाइबर्स की वजह से मेम्ब्रेन बनती है उसका एक नाम होता है, उसे कहते हैं इंटरॉशियस मेम्ब्रेन. दैट इज कॉल्ड एज इंटरॉशियस मेम्ब्रेन. इनके जो शार्प एजेस होती हैं उनके साथ ये मेम्ब्रेन जुड़ी होती है. दैट इज कॉल्ड एज इंटरॉशियस मेम्ब्रेन. और एक और एग्जाम्पल दी गई है फाइबरस जॉइंट की, दैट इज द टूथ. हमारे जो दांत हैं जो फिक्स होते हैं हमारी या तो अपर जॉ में या लोअर जॉ, यानी कि मैक्सिला हमारा अपर जॉ या मैंडिबल हमारा लोअर जॉ. सो दिस इज आवर मैंडिबल. ये ऊपर दांत है, ये उसकी रूट है, ये इसके ऊपर फिक्स्ड है इस हड्डी के अंदर. और ये आपको ग्रीन कलर की जो लाइन आ रही है दैट इज द फाइबरस टिश्यू जो इनको आपस में जोड़ करके रखता है. तो यहाँ पर कभी कोई मूवमेंट नहीं होती है. सो होपफुली क्लियर. याद रखना है नो जॉइंट कैविटी, नो मूवमेंट एट ऑल एंड शॉर्ट फाइबर्स एम्बेडेड इन द कनेक्टिव टिश्यू. सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ these are the information related to fibrous joint. Now coming towards the cartilaginous joint. तो बहुत ईजी, दो बोन्स आमने सामने और उनको जोड़ने के लिए दरम्यान में स्ट्रक्चर कौन सा इन्वॉल्व है? कार्टिलेज. सो द स्ट्रक्चर हम किसकी बेस के ऊपर बात करें? स्ट्रक्चर. तो जब भी कोई जॉइंट बने उनके दरम्यान जो स्ट्रक्चर आएगा उसी के बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन. सो एडजेसेंट बोन्स आर ज्वाइंड बाय कार्टिलेज. यहाँ पर दो तरह की कार्टिलेजेस इन्वॉल्व हो सकती हैं डियर स्टूडेंट्स. आइदर इट इज़ द फाइबरस कार्टिलेज और हेलाइन कार्टिलेज. ये दो तरह की कार्टिलेजेस हैं जो यहाँ पर, वैसे तो आपने कार्टिलेज की टाइप्स पढ़ी ली हैं. आई हैव टोल्ड यू बिफोर इन द प्रीवियस लेक्चर्स द हेलाइन कार्टिलेज एंड द फाइबरस कार्टिलेज एंड द इलास्टिक कार्टिलेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा. क्लियर. सो यहाँ पर फाइबरस और हेलाइन कार्टिलेज हैं. स्टिल देयर इज नो जॉइंट कैविटी, नो जॉइंट कैविटी. यहाँ पर भी जो जॉइंट बनेगा उसमें कोई स्पेस नहीं है. द बोन्स दे आर इन विच देयर इज कार्टिलेज, सो देयर विल बी नो जॉइंट कैविटी. कैविटी नहीं होगी यहाँ पे. और यहाँ पर जो मूवमेंट है थोड़ी बहुत, अ लिटिल बिट मूवमेंट और नो मूवमेंट एट ऑल. स्लाइटली मूवेबल और इमूवेबल दे आर. सो हियर वी गो. हियर आर फ्यू एग्जांपल्स लाइक दिस इज आवर स्टर्नम. दिस इज स्टर्नम. ये हमारी चेस्ट बोन है. दिस इज कॉल्ड एज स्टर्नम और द चेस्ट बोन. उसके साथ अटैच है रिब्स. सो दीज आर आवर रिब्स. क्लियर. सो रिब्स स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कार्टिलेज. दिस इज कॉल्ड एज हेलाइन कार्टिलेज. हेलाइन कार्टिलेज. क्लियर. इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स ये हमारी कॉक्सल बोन्स मीन्स आवर हिप बोन. दिस इज आवर हिप बोन और विच इज ऑल्सो नोन एज कॉक्सल बोन. जब ये आपस में फ्यूज होती हैं, ये पीछे इसके लास्ट हमारे सैक्रल वर्टिब्रा फ्यूज्ड और उसके नीचे यहाँ पर होते हैं बिल्कुल नीचे यहाँ पर द कॉक्सिजियल वंस, द टेल बोन ओवर हेयर. और ये हमारी कॉक्सल बोन, ये दो कॉक्सल बोन्स, ये ऊपर आइलियम एंड दिस इज द इस्कियम. दिस वन, दिस इज द इस्कियम एंड दिस इज द प्यूबिस. तो जहाँ पर ये प्यूबिक बोन्स मिलती हैं, दिस इज
pubis, this is ischium, and this is ileum. This is ileum. So pubis, let me make it clear for you. Pubis. तो ये तीन बोन्स फ्यूज होकर के बनाती हैं एक हड्डी जिसको हम कहते हैं हिप बोन या कॉक्सल बोन. सो दिस इज अ कंपाउंड बोन. जब ये दो कॉक्सल बोन्स आपस में मीट करती हैं इन फ्रंट ऑफ दिस आवर बॉडी, यहां पर बिल्कुल सामने, तो कौन सी? प्यूबिस. उनके दरमियान में यहां पर मौजूद है, दिस वन इज द कार्टिलेज. हियर इज द कार्टिलेज. क्लियर? सो दिस इज द कार्टिलेज. सो जब यहां पर भी आपको पता है ये हमारे इसके बिल्कुल पीछे हमारा यूरिनरी ब्लैडर पड़ा होता है. सो यहां पर भी कोई मूवमेंट अलाउ नहीं है. इसके अलावा इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द बिटवीन द वर्टिब्रा. सो हमारे जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स होती हैं, आई एम गोइंग टू ड्रॉ ओवर हियर. सो दिस इज आवर इंटरवर्टिब्रल डिस्क. इसके ऊपर हमारा वर्टिब्रा एंड वर्टिब्रा, हमारे मोहरे, और फिर उसके नीचे इंटरवर्टिब्रल डिस्क, उसके नीचे फिर हमारा वर्टिब्रा, तो dear student, this is the cartilaginous joint. This is our cartilaginous joint. और यहाँ पर कौन सी कार्टिलेज इन्वॉल्व है? फाइब्रस कार्टिलेज, टफ, जो प्रेशर को बर्दाश्त कर सके, जो वजन को बर्दाश्त कर सके, joint. Clear? So this is also an example of cartilaginous joint. Now let's come towards the third category on the basis of structure, that is synovial joint. तो इसको synovial joint इसलिए कहते हैं because they have got a cavity between the two bones. There is a cavity which is called as synovial cavity and it is lined by cavity. ये तो मतलब किसी चीज़ से बनी होगी. It is इसके तो जहाँ पर दो हड्डियाँ मिलें और उनके दरमियान में आपस में कैप्सूल हो और कैप्सूल उनको कवर करे, तो क्योंकि ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं. अब जब फ्री मूवमेंट चाहिए तो वहाँ पर जब फ्री मूवमेंट करवाई जाएगी, सो देयर मस्ट बी सम फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए वहाँ पर अल्लाह ताला ने एक लुब्रिकेंट भेजा हुआ है. लुब्रिकेंट कहाँ पर होगा? उस कैविटी के अंदर, एंड दिस इज हाउ इट अलाउज द फ्री मूवमेंट. सो द एडजेसेंट बोन्स हैव एंड्स. यहाँ पर जो एंड्स हैं, ये देखें, ये दो सामने एडजेसेंट बोन्स, इनके एंड्स जो होते हैं दे आर कवर्ड विद कार्टिलेज. और कौन सी कार्टिलेज? हेलाइन कार्टिलेज. आर कवर्ड विद हेलाइन कार्टिलेज. मार्क कर लीजिए एमसीक्यूज के लिए. इन synovial joint, so the adjacent bones have ends which are covered by haline cartilage and held together by surrounding tube-like capsule. तो ये बाहर इनके, इन हड्डियों के बाहर, ये दो हड्डियां adjacent bones, इनके बाहर क्या है? ट्यूब की तरह का एक कैप्सूल है. अब इस कैप्सूल की दो लेयर्स होती हैं. क्लियर? रिमेंबर दिस थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसकी दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, दो लेयर्स होती हैं. ये आउटर लेयर है, आउटर फाइब्रस लेयर, दिस इज आउटर, और इनर सिनोवियल मेम्ब्रेन. ये बाहर जो आपको ऑरेंज कलर में दिख रही है, ये फाइब्रस लेयर है, और अंदर जो इस कलर में दिख रही है, ग्रीनिश कलर में और येलोइश कलर में, दिस इज द सिनोवियल मेम्ब्रेन. और इन दोनों के दरमियान अब आ गई स्पेस, इस कैविटी. तो इस कैविटी को कहते हैं सिनोवियल कैविटी, और इस सिनोवियल कैविटी के अंदर है फ्लूइड. दिस इज कॉल्ड एज सिनोवियल फ्लूइड. और ये फ्लूइड की नेचर क्या है? ये तो हमने सिर्फ कैविटी के बेस के ऊपर इसका नाम रख दिया इस फ्लूइड का. इट कंसिस्ट ऑफ हाइलुरोनिक एसिड. इट कंसिस्ट ऑफ हाइलुरोनिक एसिड, जो कि यहाँ पर लुब्रिकेंट का काम कर रहा होता है,
ताकि जब ये जॉइंट को मूव किया जाए तो जब दो हड्डियां, एक तो कार्टिलेज उनको प्रिवेंट करेगी आपस में रगड़ खाने से, और कार्टिलेज जो थोड़ी सी चूँकि स्लिपरी सी होती है और उसके ऊपर आपने अल्टीमेटली एक लुब्रिकेंट लगा दिया अल्लाह ताला ने, तो जब भी वो ऐसे आपस में टकराएंगी तो उनके दरमियान लुब्रिकेशन होगी, तो लुब्रिकेशन होगी तो फ्रिक्शन होने के चांसेस कम होंगे। सो दिस इज़ हाउ इट मूव्स फ्रीली, आसानी के साथ। ये देखिए मूव कर गया लाइक दिस। सो दिस इज़ द नेचर ऑफ द सिनोवियल जॉइंट। सो दे हैव अ जॉइंट कैविटी। तो इन तीनों कैटेगरीज में सिर्फ किसके पास जॉइंट कैविटी है? ओनली विद द सिनोवियल जॉइंट्स एंड विद सिनोवियल फ्लूइड, इट इज फिल्ड विद सिनोवियल फ्लूइड। और सिनोवियल फ्लूइड का क्या नाम है? hyaluronic acid, which acts as a lubricant. And as far as its movements are concerned, it allows movement in multiple axes, at multiple planes, in various like flexion and extension and adduction and abduction and circumduction and rotation, supination and pronation, all kind of various movements which could be possible at the joints. This covers the main category. So ज़्यादातर movements कहाँ पर possible हैं? At the synovial joint. So here is the example of this synovial joint. तो ये the both of these they form the fibrous capsule. इन दोनों लेयर से मिलकर क्या बनता है? fibrous capsule. याद रखिएगा इस बात को। और इन बोन्स के एंड के ऊपर क्या कौन सी कार्टिलेज है? हेलाइन कार्टिलेज. जिनके एंड्स आर कवर्ड विथ हेलाइन कार्टिलेज. जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं द टाइप्स ऑफ सिनोवियल जॉइंट्स. very important thing related to the anti-test. So the synovial joints, they have got 6 categories. There are 6 types of synovial joints. Number 1, the hinge joint. Number 2, the plane joint. Number 3, ball and socket joint. Number 4, pivot joint. Number 5, ellipsoid joint, or which is also called as condyloid joint. And number 6 is saddle joint. So let us have a discussion one by one. A very interesting discussion and a healthy discussion will be inshallah. So first of all, the hinge joint. तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा है कभी दरवाज़ा कि दरवाज़ा कैसे खुलता है? तो एक चुगाट होती है जिसको हम कहते हैं, वो लोहे का फ्रेम और उसके साथ लकड़ का दरवाज़ा अटैच होता है. लेकिन अटैच कैसे होता है? उसके लिए हमें चाहिए कुछ वो कील कब्जे होते हैं, ठीक है. वो जो कील कब्जे है वो उसके हिंज है, ठीक है. और एक साइड पे वो जुड़ता है उस फ्रेम के साथ और एक साइड पे वो जुड़ता है उसके साथ दरवाजे के साथ. और इस वजह से एक प्लेन के ऊपर 2 डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल है. या तो दरवाज़ा खुल सकता है या फिर वो दरवाज़ा बंद हो सकता है, ठीक है. तो 2 ही मूवमेंट्स 2 डायरेक्शन में पॉसिबल हैं. इसी तरह से उसी की निस्बत से एक जॉइंट है जिसे हम कहते हैं हिंज जॉइंट. It functions or it works on the same principle like a working of a door hinge. Clear? So यहाँ पर the head of one bone, एक bone का head wrap का मतलब ऊपर ऐसे चढ़ना, ठीक है, इस तरह से चढ़ना, around the cylindrical head of the other bone. दूसरी bone जो होगी वो cylindrical होगी और एक bone उसका जो head है वो उसके ऊपर ऐसे wrap करेगा. जो रैप वाली होगी उसमें ऐसे स्पेस होगी, दूसरे जो सिलेंड्रिकल होगी वो ऐसे सॉलिड होगी. जैसे कि इसको मैं आगे भी एक्सप्लेन करता हूँ. लेट्स हैव अ लुक ऑन द दिस वर्क. द स्टेबल मूवमेंट एट वन एक्सिस, इट प्रोवाइड्स द स्टेबल मूवमेंट एट वन एक्सिस एंड 2 डायरेक्शंस. एक्सिस एक है, प्लेन एक है, लेकिन डायरेक्शंस 2 है. क्लियर? तो यहाँ पर 2 ही मूवमेंट पॉसिबल हैं, फ्लैक्शन एंड एक्सटेंशन. सो लाइक दिस इज माय एल्बो जॉइंट, फ्लैक्शन, एक्सटेंशन. सो दिस इज द हिंज जॉइंट. एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ मसल, एटलीस्ट इससे ज़्यादा होते हैं, हो सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम 1 पेयर ऑफ मसल जहाँ पर ज़रूर होगा इस जॉइंट के ऊपर, विच आर अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर. जैसे देखिएगा बाइसेप्स, ट्राइसेप्स. जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है इट अकर्स द फ्लैक्शन. जब ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जब ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इट विल बी एक्सटेंशन. क्लियर? सो एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ मसल इज देयर इन ऑर्डर टू कंप्लीट दिस द हिंज मूवमेंट. क्लियर? सो 2 ही मूवमेंट्स पॉसिबल हैं, फ्लैक्शन एंड एक्सटेंशन.
एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास एल्बो ज्वाइंट एंड द नी ज्वाइंट्स. सो हियर वी गो. सो दिस इज द सिलेंड्रिकल, ये सिलेंड्रिकल हेड है. ये स्टूडेंट, दिस इज द सिलेंड्रिकल हेड, सिलेंड्रिकल हेड ऑफ वन बोन. और दूसरी बोन का जो हेड है ये रैप, ये जिसके लिए वर्ड यूज हुआ था रैप्स, ये रैपिंग के लिए. सो लाइक दिस, देखिएगा ये किस तरह से है, ये रैप जो रैप कर रही है, और ये इसके ऊपर सिलेंड्रिकल हेड इस तरह से इसके ऊपर चढ़ गया. ठीक है, इस तरह से. सो दिस इज लाइक. और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हियर इज आई हैव ड्रॉन, दिस इज द डिस्टल एंड of humerus, and this is radius, this is ulna. Clear? And over here ulna का जो ये प्रोसेस होता है बिल्कुल इस तरह से, इसे कहते हैं ओलेक्रिनन प्रोसेस. दिस इज द ओलेक्रिनन प्रोसेस. ऑफ अल्ना. ये फिट होता है यहाँ पर, दिस वन, दिस इज कॉल्ड एज द ट्रोक्लिया. ये ट्रोक्लिया जो डिस्टल एंड पे मौजूद है यहाँ पर इसके ह्यूमरस के ऊपर, इसके ऊपर इस तरह से रैप होती. तो ये रैपिंग बोन है अल्ना, ये रैप कर रही है, और ये इसका जो हेड है ये ट्रोक्लिया, वो इसके पीछे इस तरह से, और इसके पीछे ये ऐसे इलोंगेटेड है, और ये जाकर पीछे ऐसे लॉक हो जाती है. इसीलिए तो हम अपनी बाजू को इससे ज़्यादा सीधा नहीं कर सकते, इससे नीचे नहीं ले जा सकते, क्योंकि नीचे लॉक है. इस प्रोसेस का पीछे से लॉक को कर देता है उसको जा कर के, और ये हमारी बाजू इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा सकती, इससे ज़्यादा स्ट्रेट नहीं हो सकती. अब एक और इन्फॉर्मेशन बताता चलूँ हिंज जॉइंट के हवाले से, थोड़ी सी ब्रॉड लेवल के ऊपर. हिंज जॉइंट इसमें तीन मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं. ये एल्बो जॉइंट जो है हमारे पास, यहाँ पर तीन जॉइंट्स बन रहे हैं. एक तो बन रहा है यहाँ पर, दिस इज बिटवीन द डिस्टल एंड ऑफ द ह्यूमरस एंड द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ अल्ना, विच इज कॉल्ड ओलेक्रिनल प्रोसेस. इसे कहते हैं ह्यूमरो अल्नर जॉइंट. इसी तरह से रेडियस और अल्ना के दरमियान, रेडियस और अल्ना के दरमियान यहाँ पर बन रहा है जॉइंट. दिस इज बेसिकली अ पिवट जॉइंट, आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे. तो रेडियो अल्नर जॉइंट. और फिर रेडियस और इसके ऊपर यहाँ पर कैपिटम है, द लोअर एट द डिस्टल एंड ऑफ द ह्यूमरस, यहाँ पर एक जॉइंट बन रहा है जो इसके ग्राउंड ऐसे रोटेट करेगी, द हेड ऑफ द ह्यूमरस, द हेड ऑफ द रेडियस. सो दिस इज ह्यूमरो रेडियल या रेडियो ह्यूमरल जॉइंट. सो दैट इज अबाउट द हिंज जॉइंट. चलिए आगे चलते हैं. एक और सादा सा जॉइंट है जिसको हम कहते हैं प्लेन जॉइंट. इसको प्लेन जॉइंट, प्लेन का मतलब यहाँ पर दो बोन्स हैं, बिल्कुल फ्लैट है, फ्लैट सर्फेसिस, टू फ्लैट सर्फेसिस, या तो वो ग्लाइड करेंगी या वो फिर एक दूसरे के ऊपर ऐसे रोटेट करेंगी. सो दिस काइंड ऑफ जॉइंट इज सिनोवियल जॉइंट, इज कॉल्ड एज प्लेन जॉइंट. और इसकी एग्जांपल हमें मिलती है एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट. ये एक्रोमियन प्रोसेस स्कैपुला का और क्लेविकल का जो ये लास्ट हेड होता है, ये आपस में जॉइंट होते हैं. या फिर इसी तरह से यहाँ पर हमारे जो क्लेविकल इधर मेनोब्रियम स्टर्नाई, यानी स्टर्नम के जो ऊपर वाला हिस्सा मेनोब्रियम होता है वहाँ पर अटैच होता है. तो यहाँ पर ये हड्डियाँ सिर्फ आपस में एक दूसरे के ऐसे ग्लाइड कर रही हैं, लाइक दिस. सो ये प्लेन जॉइंट है. यहाँ पर सिर्फ दो हड्डियों के दरमियान इस तरह से ग्लाइडिंग हो रही है, ग्लाइड. द नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट जॉइंट विच इज कॉल्ड एज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, या इसको कहते हैं मास्टर जॉइंट. इट इज द मास्टर जॉइंट. मास्टर इन द सेंस कि जितने भी मैक्सिमम मूवमेंट्स पॉसिबल हो सकती हैं जॉइंट्स के ऊपर, वो यहाँ पर मौजूद हैं. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, द मास्टर. एंड इट इज द थर्ड टाइप ऑफ द सिनोवियल जॉइंट, यू कैन सी ओवर हियर. सो हेड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी विच इज कॉल्ड द सॉकेट ऑफ द अदर बोन. और याद रखिएगा मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर मौजूद है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, मैक्सिमम. इससे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. वो आपने देखा होगा एथलेटिक्स को, वो अपनी टांगें बिल्कुल ऐसे फैला लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट अवे कर लेते हैं एट 180, ठीक है, या फिर वो ऐसे ऊपर की तरफ टांगों को यहाँ पर सीधा बिल्कुल ले आते हैं एथलेटिक्स में. सो दैट इज द मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी विच कैन बी ऑफर्ड
बाय द बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, तो वहाँ पर वो हिप ज्वाइंट इन्वॉल्व होता है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। यहाँ पर मूवमेंट्स कौन कौन सी पॉसिबल है? हेयर द फ्लैक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, सर्कमडक्शन एंड रोटेशन एज वेल। सो यहाँ पर ये सारी मूवमेंट्स पॉसिबल है। क्लियर? सो एटलीस्ट 2 पेयर्स ऑफ मसल, ये MCQs के लिए मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज है। एटलीस्ट 2 पेयर्स ऑफ मसल्स आर इन्वॉल्व इन द बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। यहाँ पर कम से कम 1 पेयर होना चाहिए। यहाँ पर जो मसल्स की अरेंजमेंट है वो पैरेलल टू ईच अदर है, जबकि बॉल एंड सॉकेट में दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर का मतलब कि एक इस लेवल पे होगा और दूसरा पेयर इस लेवल पे होगा। इसका मकसद क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा रैपिंग मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी हो सके, क्योंकि फ्री मूवमेंट होने वाली है। रोटेशन, एबडक्शन, एडक्शन, ठीक है, और फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ठीक है, एवरी काइंड ऑफ मूवमेंट इज गोइंग टू बी देयर। और वो जो बॉलिंग एक्शन वो सारा यहीं पे हो रहा है। ये सारी चीज़ें कॉम्बाइंड है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसकी एग्जाम्पल्स याद रखनी है, द शोल्डर ज्वाइंट एंड द हिप ज्वाइंट। सो हियर वी गो, दिस इज स्कैपुला, दिस इज स्कैपुला, और स्कैपुला के अंदर ये मौजूद है ग्लिनॉइड कैविटी। इसकी ग्लिनॉइड कैविटी जो कि सॉकेट का काम करेगी। इट एक्ट्स एज अ सॉकेट एंड दिस इज द हेड ऑफ ह्यूमरस, हेड ऑफ ह्यूमरस। सो इट विल फॉर्म head of humerus, it will form the ball and socket joint। और इनको लिगामेंट से प्रोटेक्ट किया जाता है, और परपेंडिकुलर मसल्स हैं, 2 पेयर्स हैं कम से कम। और ये इस तरह से इसकी डायग्राम बनेगी, ये हेड और ये सॉकेट। इसी तरह से हिप जॉइंट में भी, हिप जॉइंट में हेड ऑफ फीमर और साथ में एसिस्टैबुलम। हिप जॉइंट में जो कॉक्सियल बोन होगी उसमें एसिस्टैबुलम, of hip bone plus head of femur plus head of femur। So these are the 2 best examples। और इन दोनों में अगर स्टेबिलिटी की बात करें डियर स्टूडेंट, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हिप जॉइंट है। इन दोनों की बात करें तो ज़्यादा स्टेबल हिप जॉइंट है, क्योंकि इसकी जो कैविटी है, जो सॉकेट है, वो ज़्यादा डीप है। जबकि शोल्डर जॉइंट में यहाँ पर जो कैविटी है स्कैपुला की, यानी कि जो ग्लिनॉइड कैविटी है, वो ज़्यादा डीप नहीं है। इसीलिए शोल्डर जॉइंट की डिसलोकेशंस ज़्यादा कॉमन है एज कंपेयर टू द हिप जॉइंट डिसलोकेशंस। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द 4th कैटेगरी, दैट इज द पिवट जॉइंट, द 4th काइंड ऑफ द सिनोवियल जॉइंट। इसमें क्या होता है कि एक सिलेंड्रिकल बोन, एक सिलेंड्रिकल एज ए सिलेंडर फिट्स इनटू अ रिंग ऑफ बोन एंड अ लिगामेंट। एक बोन का रिंग बन रहा है इस तरह से, ओपन रिंग, और एक बोन सिलेंड्रिकल है, उसका वो हिस्सा उसकी तरह से फिट हो रहा है, और जिसकी वजह से ये जॉइंट बन रहा है। दिस इज कॉल्ड एज पिवट जॉइंट। अगेन लिसन, सिलेंड्रिकल, अब अ सिलेंड्रिकल बोन, ये सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर शेप, फिट्स इनटू अ रिंग ऑफ बोन, और ये दूसरी बोन उसका रिंग इस तरह से उसका फिट हो रहा है। सो दिस मेक्स द पिवट जॉइंट एंड अ लिगामेंट, उसमें साथ में लिगामेंट भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या मूवमेंट पॉसिबल है? यहाँ पर सुपिनेशन पॉसिबल है, दिस इज सुपिनेशन, दिस इज प्रोनेशन, ठीक है, एंड दिस इज रोटेशन, ये रोटेशन मूवमेंट है यहाँ पर। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर जो रोटेशन हो रही है, यहाँ पर जो रोटेशन होने वाली है, ये वाली, दिस इज एट द सिंगल एक्सिस, एक एक्सिस पे होगी, और वो एक्सिस दैट इज अलोंग द लेंथ, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के ऊपर। और यहाँ पर भी जो मसल्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं टू ईच अदर। यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट एंड एटलेंटो एक्सियल जॉइंट। एटलेंटो एक्सियल जॉइंट हमारी एटलस और एक्सिस, पहले 2 सर्वाइकल वर्टिब्रा, ये आपस में फिट होते हैं इस तरह से आकर के, एक ये एटलस एंड एक्सिस में इस तरह से ये रिंग बन गया एक बोन का, और ये ऊपर सिलेंड्रिकल इसका पार्ट बोन का, और इसके साथ फिर हमारी अटैच्ड है स्कल।
here is attached our skull. स्कल, इसी वजह से हम स्कल को इस पीवट जॉइंट होने की वजह से हम स्कल को ऐसे नीचे ये इस तरह से फ्लेक्स कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, हाइपर एक्सटेंड कर सकते हैं, इस तरह से मीडियल ऐसे रोटेशन भी कर सकते हैं इसकी, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज मीडियल रोटेशन। और मसल्स यहाँ पर पैरेलल होंगे जो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया ये हेड ऑफ रेडियस और ये अल्ना के ऊपर यहाँ पर एक नॉच बनी हुई है, एक कैविटी छोटी सी स्पेस बनी हुई है जिसके ऊपर आकर फिट होता है ये रेडियस का हेड, और इसके ऊपर आकर एक लिगामेंट है जो इसको ऐसे कवर कर देता है। अब जो रेडियस है ये घूमती है इसके अल्ना की कैविटी के अंदर, ठीक है। ये इस तरह से जैसे रिंग बन रहा है, ये इसी कैविटी से बन रही है, ये रेडियस का हेड है उसकी तरह से इन दोनों को स्टेबलाइज कौन करता है, यहाँ पर एक लिगामेंट है वो इन दोनों को आपस में जोड़ करके रखता है हेड को, तो ये से घूमती है सुपीरेशन और प्रोरेशन। तो ये मेरी ये वाली मूवमेंट जो हो रही है दैट इज ड्यू टू दिस पीवट जॉइंट। सो इट इज ये प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नल जॉइंट और इसके नीचे तरह यहाँ पर इस एंड के ऊपर डिस्टल रेडियो अल्नल जॉइंट। तो रेडियस और अल्ना ऊपर से भी जुड़ते हैं, नीचे से भी जुड़ते हैं, और उन दोनों के दरमियान कौन सा जॉइंट है, पीवट जॉइंट। और उन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान कौन सा था, वो फाइब्रस जॉइंट। जहाँ पर मैंने इंट्रोशियस मेम्ब्रेन की बात की थी, तो यहाँ पर वो फाइबर्स भी एम्बेडेड है जो इनको आपस में स्टेबल भी रखेंगे, लाइक दिस, ये इंट्रोशियस मेम्ब्रेन पे। अब आते हैं द फिफ्थ टाइप ऑफ द सिनोवियल जॉइंट, दैट इज एलिप्सॉइड जॉइंट और कॉन्डिलॉइड जॉइंट। सो इट इज सिमिलर टू बॉल एंड सॉकेट। ये बॉल एंड सॉकेट से सिमिलर है एलिप्सॉइड, लेकिन थोड़ा सा फर्क है कि इसकी जो बॉल है वहाँ पर तो बॉल बिल्कुल राउंड है, यहाँ पे जो बॉल है वो ओवल है, वहाँ पर स्फेरिकल है, यहाँ पर ओवल है। ओवल हो जाने की वजह से थोड़ी सी जो मूवमेंट है वो लिमिट हो जाती है। सो इट कैन रोटेट ऑन 2 एक्सिस, वो रोटेट कर सकती है तीनों एक्सिस पे, याद रखिएगा। इट रोटेट्स एट 3 एक्सिस, वहां पर रोटेशन 2 एक्सिस के ऊपर मौजूद है, क्लियर। इट रोटेट ऑन 2 एक्सिस। ये इसका हेड ओवल है, जबकि बॉल का जो हेड है यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट में वो स्फेरिकल होता है ऑलमोस्ट। मूवमेंट उसी तरह से यहाँ पर फ्लेक्शन भी है, एक्सटेंशन भी है, एडक्शन भी है, एबडक्शन भी है, सर्कमडक्शन भी है, लेकिन ये कंपैरेटिवली इट इज लेस स्टेबल देन द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कहाँ पर होता है, रेडियो कार्पल जॉइंट। ये हमारा रेडियस का जो डिस्टल एंड, ये वाला डिस्टल एंड है और उसके आगे कार्पल बोन्स हैं। तो यहाँ पर जो हम मूवमेंट करते हैं देखिएगा, दिस इज फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन एंड सर्कमडक्शन। सो ये जो मूवमेंट्स हो रही हैं these are possible at the ellipsoid joint or cordyloid joint. So this is distal radius और this is carpal, clear। तो इसके ऊपर वो एक हेड की तरह, लेकिन ये जो हेड है ये ओवल है, नॉट, देख सकते हैं इट इज़ नॉट स्फेरिकल, इस तरह से। तो ये इसके ऊपर ऐसे ग्लाइड भी करेगी, अ लिटिल अबाउट it will glide as well. Coming towards the fifth type of the synovial joint, that is called as the saddle joint. Saddle का पता है dear student, जो घोड़े के ऊपर एक वो काठी रखी जाती है उसे सैडल कहा जाता है, और फिर उसके ऊपर जो सवार होता है जिसको हम कहते हैं जैसे लाइक जोकी, वो उसके ऊपर बैठता है। अब जोकी की 2 टांगें दरमियान में जो उसकी सरफेस कौन सी बन रही है, कनकेव, जबकि वो जो सैडल है उसकी वो सरफेस कौन सी बनती है, कन्वेक्स। तो इधर से कन्वेक्स और इधर से कनकेव आपस में फिट होती हैं। सो इस तरह से जो जॉइंट यहाँ पर हमारी बोन्स के दरमियान बनता है उसको भी कहते हैं सैडल जॉइंट। उसी निस्बत से सैडल, उनसी काठी होती है घोड़े के ऊपर सवारी के लिए की जाती है। सो इसकी सिमिलरिटी एलिप्सॉइड जॉइंट के साथ है। इट इज सिमिलर टू एलिप्सॉइड जॉइंट बट नो रोटेशन। यहाँ पर तो रोटेशन है लेकिन यहाँ पर रोटेशन नहीं है, बहुत स्लाइट रोटेशन होती है। बोथ बोन्स हैव कनकेव एंड कन्वेक्स सर्फेसेस। इसमें जो 2 हड्डियां आपस में ज्वाइंट बना रही हैं उनके पास कनकेव सरफेस भी है और कन्वेक्स सरफेस भी है। कनकेव का आपको पता है, इस तरह की जो सरफेस होती है जिसमें इस तरह डिप्रेशन सा बने, इसे कनकेव कहा जाता है, और कॉन्वेक्स इस तरह से जो बाहर की तरफ उभरी हुई हो।
तो इस तरह से इनके दरमियान ये जॉइंट बनेगा। ये दो बोन्स हैं मैंने बनाई, ये कार्पल और उसके नीचे है जी मेटाकार्पल। मेटाकार्पल, कार्पल कौन सी बोन है? ये 8 बोन्स होती हैं हमारी अपर एंड पे ऊपर यहाँ पर, और आगे जो 5 मेटाकार्पल्स होती हैं। तो कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट जो है इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ सैडल जॉइंट। तो यहाँ पर ये दो हड्डियाँ एक दूसरे के ऊपर ऐसे फिट होती हैं, जैसे वो घोड़े के ऊपर आकर उसका सवार फिट होता है उसकी काठी के ऊपर, उसके सैडल के ऊपर। तो यहाँ पर भी वो जो मूवमेंट्स हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन एंड सर्कमलक्शन आर पॉसिबल। क्लियर? सो दीज आर द classes of or different types of synovial joints. So hopefully you have understood all this with a very keen seeking and keen learning. And nowadays students, there is a little information related to the joints and muscles, that is tendons and ligaments. So dear students, टेंडन्स ये और लिगामेंट्स दोनों ही कनेक्टिव टिश्यूज हैं, लेकिन डिफरेंस है इनमें। टेंडन्स दे आर टफ, वर्डिंग पे गौर कीजिएगा, दे आर टफ कनेक्टिव टिश्यू दैट ज्वाइंस मसल विद बोन। ये मसल्स को बोन के साथ ज्वाइन करता है। जबकि लिगामेंट इट इज स्ट्रॉन्ग, ये थोड़ा मजबूत होता है। ये टफ का मतलब हार्ड और स्ट्रॉन्ग का मतलब थोड़ा मजबूत। और कनेक्टिव टिश्यू दैट ज्वाइन बोन विद बोन एट ज्वाइंट, यूजुअली आमतौर पर ज्वाइंट्स के ऊपर मौजूद होते हैं। दे आर नॉन इलास्टिक, टेंडन्स आर नॉन इलास्टिक, क्योंकि मसल के एंड पे हम वजन उठा रहे हैं, अगर इसमें इलास्टिसिटी हो तो वजन अगर ज़्यादा हो जाए तो ऐसा ना हो कि फिर हमारा बाजू नीचे को चला जाए। नहीं, हम जितना ज़ोर से हम जिस तरह का भी वजन होगा एटलीस्ट ऊपर की तरफ आने के बाद वो नीचे इलास्टिसिटी की वजह से नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे जो टेंडन्स होते हैं मसल्स के एंड के ऊपर जो कॉर्ड्स होती हैं दे आर नॉन इलास्टिक और इन इलास्टिक। जबकि लिगामेंट्स दे आर स्लाइटली इलास्टिक, नॉट टू मच इलास्टिक बट स्लाइटली इलास्टिक। इनके अगर कलर के हवाले से थोड़ा सा बात कीजिए, दे आर वाइट वाइल द लिगामेंट्स दे आर यूजुअली येलोइश। ये फाइब्रस टिश्यूज़ हैं, जबकि लिगामेंट्स इनके अंदर इलास्टिक टिश्यूज़ हैं। चूँकि इसमें इलास्टिसिटी है, ये थोड़े टफ हैं, तो इनके अंदर फाइब्रस टिश्यूज़ हैं। एंड दे प्रोवाइड मसल अटैचमेंट, मतलब कि मसल्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि एंड के ऊपर मौजूद हैं, बोन के साथ अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। जबकि लिगामेंट्स दे प्रिवेंट डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट, जहाँ पर जॉइंट के ऊपर हैं उसको डिसलोकेट होने से बचाएंगे। इसलिए तो हम चलते चलते एकदम से पाँव मुड़ जाए हमारा, तो हमारा पाँव उतर नहीं जाता, मोच आ जाती है, लेकिन रेस्ट करने पे वो ठीक भी हो जाता है, लेकिन उतरता नहीं है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग लेटरल एंड मीडियल लिगामेंट ऑफ लिगामेंट्स ऑफ द फुट। और एक बहुत अहम चीज़, टेंडन की इंजरी, अगर टेंडन इंजर्ड हो जाए, ठीक है, मसल के एंड के ऊपर जो होता है उसे हम कहते हैं स्ट्रेन, और अगर लिगामेंट की हो इंजरी तो उसे कहते हैं स्प्रेन। क्लियर? स्ट्रेन द इंजरी ऑफ द टेंडन वाइल स्प्रेन द इंजरी ऑफ लिगामेंट। इंपॉर्टेंट MCQs हैं ये। एग्जाम्पल्स, टेंडो कैल्केनियम ये हमारे फुट में एड़ी के पास होता है, एंड टेंडो एक्लिस ये हमारी एड़ी के ऊपर वाले साइड पे होता है। आपने देखा होगा वो बकरे को जब हम लटका के और वो गोश्त तो उसकी खाल उतारते हैं, तो वो उसके ऊपर एक वाइट कलर का स्टफ किस्म का जो जिस टेंडन के ऊपर उसको लटकाया जाता है, जिसके ऊपर पूरे बकरे का वजन होता है, वो टेंडो एक्लिस ही है। और यहाँ पर लिगामेंट्स में एक तो मैंने लेटरल लिगामेंट ऑफ फुट बताया, मीडियल लिगामेंट ऑफ फुट है, ओवेरियन लिगामेंट जिसके जरिए ओवरी अटैच होती है टू द वॉल ऑफ द यूट्रस। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जॉइंट से रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है विच हैव बीन शेयर्ड विद यू। एक तो जॉइंट्स में जब प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर आप जाते हैं और आर्थ्रोलॉजिस्ट के पास, या फिर ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास, या फिर ऑर्थोपेडिक फिजिशियन के पास। क्लियर? सो आर्थ्रोप्लास्टी इट इज़ द टेक्निक विच इज़ यूज्ड टू फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ जॉइंट। जॉइंट्स को रिप्लेस करना, जो जॉइंट ख़राब हो चुका है, जो मूवमेंट में जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उस जोड़ को जो है वो रिमूव करके और नया जोड़ लगाया जाता है, या जिसे कहते हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट टेक्निक। इसको मेडिकल साइंस में कहते हैं आर्थ्रोप्लास्टी। क्लियर? अब आर्थ्रोप्लास्टी दो तरीके से परफॉर्म हो सकती है डियर स्टूडेंट्स।
एक तो ये है कि जो आर्टिकुलर सरफेस है, लेट्स सपोज कि ये जॉइंट है, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो ये आर्टिकुलर सरफेस है, इसमें एक बोन में फॉल्ट आ रहा है। तो अगर आप उस एक हिस्से को रिमूव कर दें और उसको आर्टिफिशियल जो है वो जॉइंट से यानी कि उसको रिप्लेस कर दें, आर्टिफिशियल उसके सामने स्ट्रक्चर लगा दें बॉल, सो दिस इज़ कॉल्ड एज हेमी आर्थ्रोप्लास्टी और हेमी रिप्लेसमेंट टेक्निक और पार्शल आर्थ्रोप्लास्टी और पार्शल रिप्लेसमेंट टेक्निक। ठीक है, यानी कि आपने जो आर्टिकुलर सरफेस की एक हड्डी जो जॉइंट में इन्वॉल्व थी उसको काट के और उसकी जगह कोई जो सिंथेटिक या आर्टिफिशियल जो है वो उसका पार्टनर अटैच कर दिया गया। और बाज़-औक़ात होता है कि जो दोनों जॉइंट्स की जो सरफेस है, दोनों जॉइंट पे जो दोनों बोन्स हैं जो आर्टिकुलर सरफेस एरिया पे इन्वॉल्व हो रही हैं, उन दोनों को रिमूव करना पड़ता है और पूरा का पूरा जॉइंट ही नया डालता है। उसे कहते हैं टोटल आर्थ्रोप्लास्टी या टोटल रिप्लेसमेंट टेक्निक। सो here it is. So hemi or partial arthroplasty, the bone of articular area removed on one side. अगर एक साइड पे जो आर्टिकुलर एरिया की एक साइड की जो बोन है उसको रिमूव करें, सो दिस इज कॉल्ड टर्म्ड एज हेमी आर्थ्रोप्लास्टी और पार्शल आर्थ्रोप्लास्टी और हेमी रिप्लेसमेंट टेक्निक और पार्शल रिप्लेसमेंट टेक्निक। क्लियर? While in case of total arthroplasty, both sides, दोनों साइड्स जो हैं of an articular area are removed. So this is termed as total arthroplasty or total replacement technique. अब dear student, जो artificial areas आपने जो भी रिमूव किए, चाहे एक साइड रिमूव की चाहे दोनों साइड रिमूव की, अब बाकी की बोन को उसके साथ ग्लू किया जाता है। सो दीज आर ग्लूड टू द बोन विद एन सिंथेटिक एडहेसिव, यानी कि ये लैब्स में तैयार होता है सिंथेटिक एडहेसिव, उसका नाम है मिथाइल मेथाक्रिलाइट। क्लियर? अगेन लिसन, मिथाइल मेथाक्रिलेट, याद रखिएगा। This is the important MCQ related to this replacement technique. तो ग्लू किसके साथ किया जाता है? मिथाइल मेथाक्रिलाइट। आर्टिफिशियल जॉइंट्स आर कंपोज्ड ऑफ, अब जॉइंट बनते किस किस चीज़ से हैं? तो दो मेजर चीज़ें हैं, एक तो मेटल होगा और दूसरा प्लास्टिक। मेटल कौन सा हो सकता है? स्टेनलेस स्टील हो सकता है, टाइटेनियम हो सकता है, या फिर टाइटेनियम एलॉयज हो सकते हैं उसके साथ। क्लियर? और प्लास्टिक्स जो इसके साथ कॉम्बो में इस्तेमाल होना है उसमें हाई डेंसिटी पॉलीथीन हो सकती है, या फिर साइलास्टिक या जिसको हम इलास्टोमर भी कहते हैं, ये इस्तेमाल होते हैं आमतौर पर इन द आर्टिफिशियल जॉइंट्स। क्लियर? नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द आर्थराइटिस. Arthritis, arth means joint and itis means inflammation. It has been discussed before that itis means inflammation. Inflammation जहाँ पे भी होती है वहाँ पर 5 कार्डिनल साइंस होते हैं, वहाँ पर रेडनेस होती है, वहाँ पर स्वेलिंग होती है, वहाँ पर पेन होती है, वहाँ पर लॉस ऑफ फंक्शन होता है और वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ये 5 कार्डिनल साइंस होते हैं इन्फ्लेमेशन के। जहाँ पे भी वर्ड आ गया ITIS, सो इट मीन्स इन्फ्लेमेशन, और 5 कार्डिनल साइंस। सो इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स which is called as arthritis. Arthritis, dear students, दो तरह का हो सकता है, acute और chronic. Acute जो arthritis होता है, joints की जो inflammation होती है, आम तौर पर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है, और जो चीज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो रही हो तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं? we use antibiotics यूजुअली, ठीक है, और साथ में पेन के लिए फिर पेन किलर्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और दूसरा क्रॉनिक में एक लंबा अरसा चलता है जो, और आर्टिकुलर सरफेसेस इन्वॉल्व हो जाती हैं इसमें, और फिर ये ग्रेजुअली प्रोग्रेस करती है ये डिजीज़ और लंबे अरसे तक चलती है। सो इट इन्वॉल्व्स द आर्टिकुलर एरियाज लाइक कार्टिलेजेस और सिनोवियल मेम्ब्रेन्स एंड फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। और आर्थराइटिस के सिम्टम्स क्या होंगे? जैसे कि मैंने बता दिया, पेन, एंड वहाँ पर स्टिफनेस होगी स्वेलिंग की वजह से, ड्यू टू स्वेलिंग ऑफ द जॉइंट द जॉइंट विल बी अनेबल टू मूव प्रॉपरली, ठीक है, जो स्टिफनेस सख्त हो जाएगा, तो जब उसको मूव करने लगेंगे तो पेन भी होगा साथ में। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये होता है कि फिर वो अपॉन द मूवमेंट वो जो पेन है और जो स्टिफनेस है वो कम होना शुरू हो जाती है। नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स द types of arthritis. It is very much important. So there are 3 types of arthritis
द क्रॉनिक आर्थराइटिस विच हैव बीन डिस्कस्ड। याद रखिएगा ये जो टाइप्स हैं विच आई एम गोइंग टू डिस्कस, क्रॉनिक की ही टाइप्स हैं। द रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, and osteoarthritis, and the gouty arthritis, which is also known as gout. तो डियर स्टूडेंट्स, ये 3 क्रॉनिक फॉर्म्स हैं आर्थराइटिस की, और इसमें जो सबसे मोस्ट कॉमन क्रॉनिक फॉर्म है दैट इज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस। सबसे जो कॉमन है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है। सो इट इज़ अ प्रोग्रेसिव डिजीज़। प्रोग्रेसिव ऐसी बीमारियों को कहा जाता है जो आहिस्ता आहिस्ता होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता अपने जो पाथवे को फॉलो करती हैं, सडन नहीं होती, एकदम से नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि आप रात को से बिल्कुल सही सोए थे, सुबह उठे तो जॉइंट का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, आप हिल नहीं पाए, ऐसा नहीं। तो आहिस्ता आहिस्ता शुरू में आपको हल्की हल्की पेन होगी, थोड़ी थकावट का एहसास होगा, चलने पे पेन और इस तरह से स्वेलिंग वगैरह फील होगी, फिर आहिस्ता से प्रोग्रेस करेगी। सो इट इज़ अ प्रोग्रेसिव डिजीज़ इन विच द आर्टिकुलर कार्टिलेजेस सॉफ्टन एंड डीजनरेट ग्रेजुअली। आर्टिकुलर कार्टिलेज कौन सी होती है? जो लॉन्ग बोन्स के एंड पे थी वो आर्टिकुलर कार्टिलेज कहलाती है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता नरम होना शुरू हो जाती है, वो डीजनरेट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से होता है ऑस्टियो आर्थराइटिस। और ये इफेक्ट कहाँ कहाँ पर मेनली करती है ऑस्टियो आर्थराइटिस? इट मेनली इफेक्ट्स द नी जॉइंट, द हिप जॉइंट एंड द इंटरवर्टिब्रल जॉइंट। जो हमारे मोहरों के दरमियान जो जोड़ है वहाँ पर, ये इसके 3 मेजर साइड्स ऑफ अटैक है इस बीमारी के। आहिस्ता 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 चलती रहती है, फिर बंदे को ये माजूरी की तरफ ले जाती है, डिसेबिलिटी की तरफ। नेक्स्ट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। डियर स्टूडेंट्स, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और RA भी इसको बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज RA। इसका टेस्ट भी इसी नाम से होता है, RA टेस्ट। तो ये बेसिकली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एक ऐसे डिसऑर्डर को कहा जाता है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम वो गलती से हमारे बॉडी के सिस्टम के खिलाफ ही या हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर्स के खिलाफ ही इम्यूनिटी चला देता है। ये गलती से होता गलती से है। और आम तौर पर इसके पीछे जो रीजंस जो हैं वो सामने आती है, वो ये है कि ड्यू टू रिकरेंट वायरल इन्फेक्शंस, ख़ास तौर पर रिकरेंट वायरल इन्फेक्शंस, बार बार अगर वायरल इन्फेक्शन हो जाए। और कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं, जब वो आपको पता ना वायरस आते हैं, जो एनवेलप्ड वायरस, जब वो हमारे बॉडी के अंदर आता है, सेल के अंदर एंटर होता है, तो वो होस्ट सेल की मेम्ब्रेन को लेकर के अंदर आता है, जो एनवेलप्ड वायरस है। तो जब वो एनवेलप लेकर आया है सेल के अंदर, तो बॉडी को कहीं गलती से पता चल गया कि ये तो वायरस था, और वो क्या करेगी, उसके खिलाफ इम्यून सिस्टम चला देगी। और ऐसा पॉसिबल है, इट इज़ नॉट श्योर, अब तक एग्जैक्ट मैकेनिज्म पता नहीं है। इट इज़ पॉसिबल कि चूंकि वो आपके सेल की मेम्ब्रेन को लेकर अंदर एनवेलप हुआ, क्योंकि उसके पास अपनी एनवेलप तो नहीं था, तो जब वो वायरस आपके सेल का एनवेलप लेकर आएगा और आपका इम्यून सिस्टम ये रिकग्नाइज कर ले कि ये वायरस है, तो क्या करेगा कि उस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगा, अपने इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। लेकिन उसने जो ऊपर ओढ़ रखा है, वो जो एनवेलप ओढ़ रखा है, वो जो चादर ओढ़ रखी है, वो तो आपके सेल की है। तो वो इम्यून सिस्टम क्या करेगा, उस वक्त उसे पता नहीं चलेगा, वो तो ये समझेगा ये वायरस है, वो इसकी चादर है, वो इसी का एनवेलप है, तो वो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगा। तो उस एनवेलप से रिलेटेड जितने भी जहाँ जहाँ पर भी वो सेल्स होंगे, इम्यून सिस्टम उसको टारगेट करना शुरू कर देता है। इस तरह की बीमारी को कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी हमारा डिफेंस सिस्टम हमारे ही खिलाफ हो जाता है, लेकिन गलती से, जानबूझ के नहीं। तो उसी तरह से उन जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बहुत सारे हैं, उनमें से एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। सो इट इज़ द रिजल्ट ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज, जहाँ पर जो सिनोवियल मेम्ब्रेन होती हैं, हमारी जो सिनोवियल मेम्ब्रेन जॉइंट्स में होती हैं, दे बिकम इन्फ्लेम्ड ड्यू टू द फॉल्टी इम्यून सिस्टम। हमारा इम्यून सिस्टम फॉल्टी हो जाता है, मतलब कि वो गलती से पहचान नहीं पाता कि ये हमारे बॉडी के सेल्स हैं। इट इफेक्ट्स हैंड्स, रिस्ट, हैंड के जो जॉइंट्स हैं, यानी कि ये वाले यहाँ पर कार्पो मेटाकार्पल, और ये यहाँ पर रेडियो अल्नर, रेडियो कार्पल जॉइंट और इंटरफिलेंशियल जॉइंट्स, एंड यानी कि रिस्ट, हैंड और रिस्ट के जॉइंट्स, नी जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, यानी जहाँ जहाँ पर वो सिनोवियल मेम्ब्रेन हो सकती है वहाँ पर इसका अटैक होगा। और तीसरी और आखिरी कैटेगरी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ गाउटी आर्थराइटिस, जिसको गाउट कहते हैं, उर्दू में इसको गैंठिया भी कहते हैं।
तो आम तौर पर इसमें हम इसकी इमेज क्या दिमाग में आता है कि वो फुट है, फुट का जो सा बिग टो यानी कि अंगूठा जो होता है वो सूजा हुआ होता है काफ़ी ज़्यादा, तो आमतौर पर होता भी इसमें यही है। सो इट रिजल्ट्स फ्रॉम अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ये ना तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ना ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये गाउट जॉइंट इज ड्यू टू अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। हमारी बॉडी में ऐसे कुछ मेटाबॉलिज्म इस तरह से ख़राब हो जाता है कि वो जो यूरिक एसिड को हमारी किडनी से रिमूव नहीं कर पाती हैं, क्योंकि आमतौर पर यूरिक एसिड को रिमूव करना हमारे किडनी के ज़िम्मे एक्सक्रीटरी ऑर्गन वही है। तो जब उसको एक्सक्रीट नहीं कर पाएंगी तो क्या होगा कि वहाँ पर हमारे ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं हाइपर यूरिसीमिया। ठीक है, ब्लड के अंदर उसका लेवल इंक्रीज करना। तो जैसे जैसे इंक्रीज करता जाएगा तो वहाँ पर मौजूद जो केटाइंस हैं लाइक सोडियम या यूरिक एसिड उसके साथ मिलेगा और क्या बना देगा, सोडियम यूरेट, और वो फिर क्रिस्टलाइज हो जाएंगे जहाँ जहाँ पर, क्योंकि ब्लड तो हर जगह पे जा रहा है। तो ऐसे जॉइंट्स जो पेरिफेरल जॉइंट्स हैं हमारे, ख़ास तौर पर फुट के जो जॉइंट्स, फुट में कौन से जो टो जॉइंट्स होते हैं और जहाँ पे टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट बन रहा है या फिर जो फेलेंजियल जॉइंट्स बन रहे हैं, वहाँ पर ये जाकर के क्रिस्टल्स जो है सोडियम इसके यूरेट के क्रिस्टल्स वहाँ पर जमा होना शुरू हो जाएंगे। जब मूवमेंट होगी तो क्रिस्टल क्या करेंगे, जो आर्टिकुलर सर्फेसिस हैं उनके दरमियान रगड़ पैदा करेंगे और क्रिस्टल्स उनको खुरेदना शुरू कर देंगे। आर्टिकुलर वो जो सी कार्टिलेज है वहाँ पर मौजूद, और आहिस्ता आहिस्ता वो खुरेदती चली जाएगी, ख़त्म होती चली जाएगी, और फिर मूवमेंट पे पेन स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ पर स्वेलिंग होगी, अच्छी खासी स्वेलिंग होती है। सो दिस इज़ कॉल्ड एज द गाउटी आर्थराइटिस. So it results from the metabolic disorder in which the abnormal amount of uric acid is retained in blood. ठीक है, यूरिक एसिड का एबनॉर्मल अमाउंट जो है वो रिटेन हो जाता है। इस कंडीशन को कहते हैं हाइपर यूरिसीमिया। सोडियम यूरेट, इसको एमसीक्यूज के लिए मार्क करें। सोडियम यूरेट क्रिस्टल्स डिपॉजिटेड इन द जॉइंट्स, स्पेशली ऑफ द टो जॉइंट्स। मोस्ट कॉमन इफेक्टेड जॉइंट इज ऑफ बिग टो. So big toe. So dear students, now a quick quiz for you. The study of joints is called osteology, myology, or arthrology, or chondrology. So osteology, it is related to bones, myology to the muscles, chondrology to the cartilages, and arthrology to the joints. Which one of the following is immovable joint? Ball and socket, cartilaginous, saddle, or pivot? So the correct answer is cartilaginous joint. So joints in adult human are 360. Injury to tendon is called, dear students, what is it called? So it is called strain. And the injury to ligament is called sprain. The structurally synovial joints or synovial joints are of dash types. So they are of 6 types. Dear students, today we have discussed the types of joints on the basis of mobility and on the basis of structure, the fibrous joints, the cartilaginous joints, and the synovial joints. And we have subclassified the synovial joints into pivot, ball and socket, saddle, and the plane joint, and the ellipsoid joint. Clear? And at the end, we have discussed the arthritis and its types. So hopefully today's lecture is clear. If there is any query related to today's lecture, you can put your question in the comments box, and our subject specialist will answer you soon. And still, if there is any query related to anything, you can also refer our MCQs in the app. So take care of yourself. Until next lecture, Allah Hafiz.